پاکستان سوسائٹی نے کافی عرصے سے پروگرام بنا رہی تھی کہ ہم کوئی ایسا فنکشن کریں کہ جس میں ہم سب سوسائٹیوں کو اور دوستوں کو مدعو کریں، لیکن پہلے مسئلے یہ چلے کہ فوتگی ہوگی، اس فوتگی کی وجہ سے ہم نے پروگرام لیٹ کیا، اور اس کے بعد یہ جو ابھی اسٹوڈنٹ لوگ بنے ہیں ان کی وجہ سے، لیکن پھر آج ہم نے فائنل یہ فیصلہ کیا کہ سنڈے کو ہم پروگرام ضرور کریں گے۔ میں سب دوستوں کو پاکستان سوسائٹی کی طرف سے اور پاکستان سوسائٹی کی آل ٹیم کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں۔ تو اب میں گزارش کروں گا، کیونکہ ٹائم کی بھی قلت ہے، سب لوگوں نے جانا ہے، تو میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ جاج بخاری صاحب آئیں اور تلاوت کلام پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صدق الله العظيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين وعلى أصحابه المقربين وبارك وسلم عليه۔ نہایت واجب الاحترام حاضرین گرامی قدر، آپ سب کو ایک جگہ دیکھ کر دلی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اس طرح کے اجتماعات زیادہ ہوں اور پاکستانی جو وہ اس طرح جمع ہوں کہ اس میں پاکستانیت نظر آئے۔ تو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان سوسائٹی کا کہ جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا، تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اقدام ہے آپ کی جانب سے۔ تمام آپ کے جو منتظمین ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا۔ اگر میں ایک طرف سے لے کر دوسری طرف تک دیکھوں تو الحمدللہ ہر تنظیم، ہر سیاسی سماجی نوعیت کے تمام افراد ہیں جو وہ اللہ کے فضل سے یہاں پر موجود ہیں۔ اور ایک دو مثالیں دے کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ جلدی بھی سب سے زیادہ جانے کی مجھے ہی، تو میں کسی اور جگہ پہ کمیٹڈ ہوں، تو مجھے بتایا گیا تھا کہ 4 بجے یہاں پہ پہنچنا، تو میں ایک اور جگہ پہ 6:15 بجے کا برانڈ بھی میں نے پہنچنا، تو اس لیے میں آپ کی اجازت سے جیسے ہی مجھے مناسب موقع ملا تو میں خاموشی سے نکل جاؤں گا۔ اللہ کے فضل سے یہاں پر جتنے پھول موجود ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اپنی اپنی حیثیت میں، سب ہیں جو وہ قابل قدر ہیں، قابل عزت ہیں، قابل تقریر ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب کو جمع کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنظیم ہمیشہ سے داعی رہی ہے پاکستانیت کی، پاکستانیوں کو جمع کرنے کی۔ مجھ سمیت اس بات پہ میرا یقین ہے، اور میں اس بات کو نہایت خوش دلی سے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں پر کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ ہم اکٹھے ہوں۔ میری بہت ساری دعائیں اللہ پاک اس میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو پاکستان کے اوپر یک جان اور یک جانب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ جناب، ہم اپنے نئے آنے والے مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ ملک بوٹا صاحب ہیں، راجہ نظیم ظفر صاحب ہیں، یہ آج ہماری سوسائٹی میں راجہ نظیم صاحب پہلی دفعہ آ رہے ہیں، تو ان سب دوستوں کو آج ہم دل سے بلانے کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ایک چیز آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان سوسائٹی جو ہے یہ مدر سوسائٹی ہے۔ یہاں ڈینمارک میں پچھلے
तकरीबन 50 साल से ज़्यादा अरसा है जिसमें ये काम कर रहे हैं यहाँ, और मैं भी 92 से इसके साथ मुंसलिक हूँ एज ए मेंबर की हैसियत से। तो हमारी कोशिश यही है कि पाकिस्तानी सब जो हमारे ओवरसीज़ के मसाइल हैं उसके लिए हम सब मिलकर काम करें, और यहाँ जो हमारे सबसे पहले ओवरसीज़ के मसाइल हैं उन पर बात होनी चाहिए। तो जितने दोस्त यहाँ बोलना चाहते हैं वो उनको बिल्कुल टाइम मिलेगा, और अपना पैगाम ईद के हवाले से आप देना चाहते हैं, ये ईद मिलन पार्टी है, तो आप सबको ईद मुबारक। और उसके हवाले से जितना ये प्रोग्राम होगा तो हर बंदे को 1 मिनट के हिसाब से आप बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मैं अभी गुजारिश करूँगा मियाँ मनीर अहमद साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बेटों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कुछ हाजी शहबान अभी ईदी असम्बली इस हज पर हज से तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपना घर दिखाए और इनकी हाज़िरी कबूल करे। और इसी तरह जिस ईद का अभी जिस ईद के लिए, ईद पार्टी के लिए ये नाम रखा गया आज की इस गैदरिंग का, और वो आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मैं समझता हूँ कि शाह साहब की बात के बाद दर हकीकत बात कोई रहती नहीं है जो हमें करनी चाहिए, लेकिन उस पर अमल करना ज़रूरी था। हकीकत यही है कि हम पाकिस्तानी और फिर दियार गैर में रहने वाले पाकिस्तानी और फिर डेनमार्क में रहने वाले पाकिस्तानियों का पाकिस्तान सोसाइटी से एक बहुत गहरा तल्लुक़ है। मैं भी इसका गवाह हूँ, आप सब माशाल्लाह इसके गवाह हैं। ये वाहिद मरकज़ी तंजीम है जिसने हमेशा कोशिश की है हमें इकट्ठा करने की। तो हमने एज ए पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, अपने आने वक्त के लिए एक साथ चलना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं गुजारिश करूँगा काफ लीग के चेयरमैन सैयद तुकीर शाह साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथियों, मेरे बच्चों, आप ही मेरी बलादरी है। मैं जब यहाँ आया था अकेला सैयद था, अब बहुत ज़्यादा सैयद हो गया, लेकिन आप लोग जो है कोई अलग कबीला नहीं है, आप लोग ही मेरी फैमिली है, आप लोग ही मुझसे हैं। चौधरी वलायत जैसा भी है, दुनिया इसको जो मर्जी के, मैं बस सीधे सैयद इसको वाकई लीडर मानता हूँ। और ये कहता हूँ कि जब ये आता है, अल्लाह करे हर ईद पे यहाँ हो। क्यों कि किसी की शादी होती है, किसी की पार्टी होती है, किसी को कुछ होता है तो मखसूस लोगों को बुलाया जाता है। ये वाहिद एक ऐसा शख्स है जो रात के 12-12 बजे भी, 1-1 बजे भी टेलीफोन करके कहता है कि फलाना आदमी जो है वो हाजिर हो, फलाना आदमी ज़रूर आए। तो ये हमारी खुश नसीबी है कि ये वो शख्स था कि जब ये काउंसलर बना था, मैं भी एक दफ़ा काउंसलर इलेक्ट हुआ हूँ, इन्हीं के नीचे काम किया। हमारी ईद होती थी हर रोज़, हर हफ्ते हमारी ईद होती थी। हम उधर क्या नाम है हॉल ऑफ प्रेस के अंदर हम लोग इसी तरह बैठते भी थे, खाते भी थे, हर एक चीज़ करते थे। तो किसकी वजह से थे? चौधरी वलायत की वजह से। आज हमें सब प्रॉब्लम्स हैं इस माशरे के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मैं रेडियो पे, राजा साहब के रेडियो पे वो बात करता हूँ और बुलंद करता हूँ। तो खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है चौधरी वलायत से कि इस कौम को जो हम हैं, जो हमारा टाइटैनिक डूबने वाला है, इसको बचाएं। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन राजा गफूर अफजल साहब, वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ईद की खुशी में पाकिस्तान सोसाइटी के सदर चौधरी वलायत खान साहब ने सबको मौजूद किया अपनी टीम के साथ। आज से 44 साल पहले जब मैं इस मुल्क में आया था तो मुझे जो सबसे पहले सोसाइटी का नाम मुझे था वो पाकिस्तान सोसाइटी लोग नाम लेते थे। मेरी तो जान पहचान इन लोगों से रखती थी। उस वक्त से मैं सोसाइटी को जानता हूँ। चौधरी वलायत खान साहब के बारे में मैं थोड़ी सी स्टडी भी करता रहता था शुरू में, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकली इनको मैंने देखा। 40 साल से ये मुख्तलिफ हवालों से छोटे बड़े प्रोग्राम हज़ारों की तादाद में लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया, सैकड़ों की तादाद में भी इकट्ठा किया। और आज जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है अपनी सोसाइटी की तरफ से, पाकिस्तान सोसाइटी की तरफ से अपनी टीम के साथ मिलकर जो किया है,
मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सारे चेहरे जाने पहचाने, कोई ऐसा चेहरा नहीं जिसको हम जानते नहीं हैं। मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी नज़र आ रही है, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नज़र आ रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ़ी नज़र आ रही है, उसके बाद मुझे मजहबी जमातें भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा और भी जितने PTI का अगर मैं देखें तो PTI की काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। मुझे इमरान महबूबी चंद में पहले नज़र आए थे, वो भी यहाँ इधर ही हैं। तो इसका मतलब है कि सारी जमातें, कश्मीर सोसाइटी के सदर जो हैं वो राजा सादिक साहब भी मुझे नज़र आ रहे हैं, तो नौजवान बच्चे हमें नज़र आ रहे हैं, मुझे चौधरी अशरफ साहब भी नज़र आ रहे हैं, तो छोटे बड़े सब यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये इस कम्युनिटी का, इस सोसाइटी का हिस्सा है। जिस तरह शाह साहब ने कहा, शाह साहब ने तफसील से सब कुछ बता दिया है, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बड़ी खुशी की बात है, आज खुशी का दिन है, आज गिले शिकवे का दिन नहीं है, आज इन्होंने बुलाया, खुशी के लिए बुलाया, और पाकिस्तान सोसाइटी ने इनिशिएटिव लिया है कि आज ईद मिलन पार्टी हो रही है। इस ईद मिलन पार्टी में हमें खुशी के पैगाम देना चाहिए। मैं एक बार फिर पाकिस्तान सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान सोसाइटी यहाँ सालों से काम कर रही है, तो आइंदा भी हमारा यही प्रोग्राम है कि पाकिस्तान सोसाइटी जो है इसी तरह सारी कम्युनिटी को मदद करती रहेगी, और हम पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए और पाकिस्तानी ओवरसीज़ के लिए काम करेंगे। और एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर कुछ लोगों को हम नहीं बुला सके, उसके लिए हम पेशगी मादरत हुए, तो इंशाल्लाह आइंदा जो प्रोग्राम होगा उसमें हम सब लोगों को मदद करेंगे। तो अब मेरी गुजारिश है कि जनाब मुजीब कुरैशी साहब, प्रेसिडेंट पीपल पार्टी, वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम और गुज़िश्ता सबको ईद मुबारक। और जो मेरे भाई हज करके आए हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक। मैं मोहतरम चौधरी वलायत खान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें आज वुज़ू किया, और मैं बहुत बात पेश करता हूँ कि इतना प्यारा प्रोग्राम जो कि उन्होंने एक गुलदस्ता सजा दिया है, और हमेशा वो सजाते हैं, तो मैं इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मुझे बड़ी खुशी हुई। मोहतरम शाह साहब ने अपने अल्फाज के अंदर सारा कुछ बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी हम ये महसूस यहाँ पे करते रहते हैं, और हमारा पैगाम तो आप यही होता है कि हमने मिल के रहना है, हमने आपस में मुआवजे बांटनी है, हमारा मरना जिला यहाँ पे एक है, और हमारे जो चंद मसाइल हैं, PIA है, कैटेगरी 5 है, वो जब तक ये गुलदस्ता इकट्ठा नहीं होगा उस वक्त तक वो हम हल नहीं कर सकते। तो मैं चौधरी वलायत खान साहब को मशहूर हूँ, उनकी टीम को मशहूर हूँ कि उन्होंने आज एक बेहतरीन गुलदस्ता सजाया। अब मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी बैठी हुई है, तो जनाब तजम्मल शेख साहब आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। रोमी आ जाए आप। और मेरी तरफ से सब दोस्तों को ईद मुबारक। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे सारे इकट्ठे हैं, और हमें मिलकर ही चलना चाहिए, और सबसे अब मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ जनाब PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं इमरान महबूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, और आप सब की तरफ से पाकिस्तान सोसाइटी को ईद मुबारक। और मैं पाकिस्तान सोसाइटी को अपनी तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज ये जो इनिशिएटिव उन्होंने दिया है कि पाकिस्तान में बसने वाली जो कम्युनिटी है यहाँ पे सबको इकट्ठा किया है, और इसमें अगर आप देखें तो तमाम सियासी जमातों के कारकुन हैं, तमाम मजहबी जमातों के कारकुन हैं, जितनी भी तंजीमात हैं, सबके सरबराह यहाँ पे मौजूद हैं। और पूरे यूरोप में अगर आप देखें तो ये वह तंजीम है जिसमें कि तमाम पार्टीज के सरबराह मौजूद है। और मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, और मैं मुबारकबाद भी देता हूँ जो सदर हैं जनाब मेरे अंकल चौधरी वलायत साहब, उनको मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। मैं कहता हूँ एक दफ़ा आप उनके लिए ज़ोरदार तालियां। सीनियर रहनुमा काजी चौधरी शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से और पाकिस्तान सोसाइटी की तरफ से आप सब लोगों को वेलकम और ईद की मुबारक सबको। मसाइल की बात तो सब ने कर दी है। असल में ये पाकिस्तान सोसाइटी एक वाइड प्लेटफार्म है जो कि सब पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करता है, और आज नहीं करता, अरसा दराज से कर रहा है। और जब भी कोई मसला या मसाइल होते हैं
جو اسی پلیٹ فارم پہ یہ حل ہوئے ہیں پاکستانیوں کے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو اس کا حصہ بننا چاہیے، اس کے بازو بنے اور اس کو مضبوط کریں. اور دوسرا یہاں سب سے ضرورت جو کہ یہاں پارٹیوں میں جا کے شامل ہو کے ڈینش پارٹیوں میں اپنے بچوں کے، جو کہ اپنے بچے ہمارا مستقبل ہے، ان کو لائیں. کیونکہ آپ سب خدا کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریں، ان کے بازو بنے، ان کو حوصلہ دیں کہ آپ سیاسی پارٹی میں جب آئیں گے تو ہمارے دیکھیں بچوں چھوٹے جو پیدا ہوتے ہیں بچے، ان سے لے کے بڑے ہونے تک یہ ان کی مسائل ہیں، یہ ہمارے ہی مسائل ہیں. جب وہ بچے، جب کوئی ہمارا پارٹی کوئی نمائندگی نہیں کرے گا تو ہم اپنے مسائل ہی ان کو بتا سکیں گے. سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ لوگ آئے. کشمیر سوسائٹی کے صدر راجہ ساجد قیوم صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب پاکستان سوسائٹی کا. میں آج ایک کے برائے سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کشمیر اور کشمیر سوسائٹی کو یہاں پہ انوائٹ کیا، اور میں اپنی طرف سے اور پوری میں کشمیر سوسائٹی کی طرف سے جن کی پوری جو سوسائٹی ہے اس کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ سب کو عید کی بھی مبارک، اور جو حج کر کے ہیں ان کی بھی، ان کو بہت بہت مبارک ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت سے میرے بھائی بہت سی باتیں کہہ دی ہیں اور بار بار وہی بات ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان سوسائٹی 40 سال سے یہاں پہ کام کر رہی ہے اور پاکستان کمیونٹی کی خدمت کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے آج بھی کہا رہا ہے غفور صاحب کے ریڈیو پہ کہ ہم سب کو یہ بالکل چاہیے کہ ہم اس کا ساتھ بھی دیں، اور اس کے ساتھ ہم جو پاکستانی پروگرام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے، کافی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا کلچر جو ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں اور اپنے بچوں تک اس کو رسائی دیں کہ کم سے کم آنے والے جو بچے ہیں نا ان کو پاکستان کے بارے میں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ میں بچوں کے ساتھ کافی کام کرتا ہوں تو بہت سے بچے ہمارے ایسے ہیں جن کو ڈانس تک نہیں آتی. تو یہ افسوس کی بات ہے. تو پروگرام کیے گا تو میں جیسے سب نے کہا، میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان سوسائٹی ڈنمارک اور اسپیشل ہمارے انکل، ہمارے بڑے بزرگ بھائی، ہمارے استاد بھی ہیں چودھری صاحب، ان کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے. اور باقی آپ سب کو پتہ میرا کشمیر سے تعلق ہے. کشمیر سوسائٹی ڈنمارک کے لیے میں چھوٹا سا کارکن ہوں. میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ مسئلے کشمیر کے اوپر بات کروں. میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں سب کی ہمیشہ رسپیکٹ کرتا ہوں. ہر ایک جماعت کی ہمیشہ رسپیکٹ کی ہے، وہ آگے بھی میں کروں گا. میں کہتا ہوں سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا جب بھی آپ بولیں تو کم سے کم پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں بولتے ہیں تو رسپیکٹ بولیں، جو ہے تو وہ پاکستان کی پارٹی ہے تو وہ پاکستانی ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے. اور دوبارہ کشمیر سوسائٹی ہمیشہ 15 اگست 11 بجے پروگرام کرتی ہے انڈیا ایمبیسی کے آگے، ڈیمونسٹریشن کرتی ہے، جس میں ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ چودھری بحث صاحب شانہ بشانہ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کے کام بھی کرتے ہیں، نصیحت بھی کرتے ہیں. تو میں سب آپ بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ 15 اگست انشاءاللہ 11 بجے سے 1 گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے. 1 منٹ اوپر آپ رہیں، لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ آپ وہاں پہ ضرور آئیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ کھانا تو نہیں ہوتا، وہاں پہ کھانا تو نہیں ہوتا، لیکن جذبات ہوتے ہیں. وہاں پہ ان شہداء کی بات کی جاتی ہے، ان لوگوں کی بات کی جاتی ہے جن کو کے سامنے، ماں باپ کے سامنے ان کو ریپ کیا جاتا ہے، ان کی عصمت دری کی جاتی ہے. سادہ الفاظوں میں کہوں تو ان کو ریپ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کتنی ظلم اور کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. نوجوانوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو ہمارا جو ایک ہی آسرا ہے اور ہماری ایک امید ہے وہ ہے پاکستان، پاکستانی بھائی. میں آپ سے آج جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، پلیز 15 اگست کو 1 گھنٹے کے لیے 11 سے 12 بجے تک پلیز آیا کریں. آپ سب کشمیری ہیں، آپ سب پاکستانی ہیں. آپ سب کو پتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی رگ ہے. پاکستان کشمیر کے علاوہ اور کشمیر پاکستان کے علاوہ ادھورا ہے. میں آپ سب سے اگر جذبات میں مشکلات کو معذرت خواہ میں، لیکن میں یہ ریکویسٹ ہے کیونکہ مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ آپ میرے بھائی بہن ہیں. جب میں کشمیر مقبوضہ کشمیر میں بات کرتا ہوں، یہ فلم جب وہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں آپ تو جذبات تو ہیں لیکن آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں. تو میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ لوں گا کہ انشاءاللہ 15 اگست کو 11 بجے آپ لوگ واپس سیکھ لائیں. اور اگین میں جناب بہت مشکور ہوں پاکستان سوسائٹی ڈنمارک کا اور چودھری بحث صاحب کا کہ انہوں نے یہ پروگرام اتنی جلدی
कुरान किया। और सबसे हुसन और प्यारी बात इनमें यह है कि जब भी ये लोगों को इकट्ठा करते हैं, कॉल करते हैं, तो एक कॉल पर लोग आ जाते हैं। दुनिया में सबसे औखा और सबसे सख्त काम जो है ना, लोगों को करना होता है। और मैं समझता हूँ इनके लिए एक दफ़ा तारीफ आए और इनमें यह सीख और बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब जनाब मैं गुजारिश करूंगा खान साहब से, शफाकत खान साहब 1 मिनट के लिए वो अपने ख्यालात का दान करें। राजा फराद कोकन साहब ने और साथियों ने जो प्रोग्राम लिया है इसमें शरीक हुए, मुझे इस बात में फख्र है कि आज हम पाकिस्तानी इकट्ठे बैठे। हर कोई शख्स अपनी पहचान और तारफ का मोहताज नहीं है। मैं किस चीज़ का नाम लूँ? मैं जब से यहाँ डेनमार्क आया तो बाखुदा में उम्रा करके आया हूँ कि मुझे पंजाब के लोगों ने पहचान दी है। कितने दूर तक मैं गया, कितने लोगों ने मुझे सुना, कितने लोगों ने मेरी बात को सुना। मुझे जितनी इज्जत पंजाब के लोगों से मिली शायद कि मुझे अपने लोगों से भी नहीं मिली। दूसरी बात यह है कि मैं चौधरी साहब के साथ रहा हूँ, जितना अरसा से भी रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला को गवाह बना के कहता हूँ, बिला झिझक बिला धड़क जहाँ मैं बोलता हूँ, सामने बोलता हूँ, सही बात करता हूँ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने जितना पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए चौधरी वलैद खान को मुखलिस पाया था डेनमार्क को, ख्वाहिश है कि ये दोबारा कोकोनावन कम्यून की तरफ से इलेक्शन लड़े। पाकिस्तान इलेक्शन जरूर लड़ो। इसकी लड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। पाकिस्तान सोसाइटी के हमारे साथी इन्होंने आपसे रब्ता किया, आपने वक्त निकाला, सबको मिल बैठने की ख्वाहिश थी तो हम इकट्ठे बैठे हैं। हम सब एक हैं, हम एक कश्ती के सवार हैं। अगर ये कश्ती पार होगी तो सब पार हो जाएंगे, अगर कश्ती डूब गई तो सब डूब जाएंगे। यहाँ के हालात अगर अच्छे होंगे हमारे सब के लिए अच्छे होंगे, अगर यहाँ के हालात ख़राब होंगे हमारे सब के लिए ख़राब होंगे। ये तो बातें बाद में करता हूँ। सबसे पहले ईद मुबारक आप सबको। और साथ ही मुझे एक फ़िक्र हो रही है, मौलाना कौसर न्याज़ी एक दफ़ा यहाँ आए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बड़ी पुरानी बात है, पीपल्स पार्टी के बड़े दबंग लीडर थे, मिनिस्टर थे ओवरसीज़ के, यहाँ आए तो बातें होती रही, उन्होंने देखा एक्टिविटीज़ के बारे में उनको पता चला तो मुझे कहने लगे वलैद खान, मेरी मुखालफत भी बहुत होती थी, अब थोड़ी कम हो गई है, बहुत ज़्यादा मुखालफत होती थी। तो मुझे कहने लगे वलैद खान फिक्र ना करना, तुम्हारी तारीफ बहुत होगी लेकिन तुम्हारे मरने के बाद। तो खुदा के लिए आपने मेरे जिंदगी में शुरू कर दी है, मुझे फिक्र लग रही है। आप बारे कर रहे हैं मुझे। अच्छा, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। देखें, मैं आप कह रहे हैं जी वलैद खान का शुक्रिया, पाकिस्तान सोसाइटी का शुक्रिया, वो हम सब एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें। हमारे सब के दिल में ये मोहब्बत है, लगन है, हम एक दूसरे को अपना समझते हैं, तो इसलिए हम इकट्ठे बैठे हैं। और जितने भी काम होते हैं यहाँ, जितने भी काम होते हैं हमारे सब के लिए अच्छे हैं। कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो उसका फ़ायदा हम सबको ही होता है। अल्लाह करे हम सब अच्छे काम करें। लेकिन पाकिस्तान सोसाइटी, आप कह रहे हैं 40 साल, पाकिस्तान सोसाइटी अगले साल 25 में 50 साल जश्न मनाएगी। ये 75 में शुरू हुई थी। 75 में जब शुरू हुई तो हमने पूरे डेनमार्क में सारे पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। कोई मेंबर है नहीं है, सब मेंबर हैं, सब वोट दे सकते हैं। हमने मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन कराए, हमने ओबूस में कराए, वंसे में कराए, सिंगोर में, फ्रेंसबर्ग में, यानी सारे ईसाई में, कास्टोक में, हेल्टस्टोन में, कोपेनहेगन में, हर जगह पे इलेक्शन किए, इधरों में। तो उसमें सबको इजाज़त थी हिस्सा लेने की, सबको वोट देने की इजाज़त थी, तो हम कामयाब हुए अल्लाह के फजल से। फिर 76 में हुए तो अल्लाह ने हमें कामयाब किया, इसी तरह से फेयर इलेक्शन थे। लेकिन 76 और फिर 77 में जब हुए तो हम कामयाब हुए, तो एक चक्कर चला, शोर मच गया जी ये धांधली हो रही है, धांधली हो गई है, जैसे पाकिस्तान में शोर करते धांधली हो गई है। तो हमने कहा जी नया इलेक्शन करा लें, हमने डिज़ाइन कर दिया, नया इलेक्शन कराया, उसमें दूसरों ने हिस्सा ही नहीं दिया।
لیکن کہتے رہے جی دھاندلی دھاندلی دھاندلی. اس کے بعد ہم نے 78 ہم نے 5 الیکشن بعد میں بھی کرائے, پورے ڈنمارک میں سارا پروسیجر مکمل کیا, لیکن مخالفین نے آخری ٹائم پہ درخواستیں نہ دے کر بائیکاٹ کر دیا اور کہتے تھے جی دھاندلی. اب اس طرح سے جب ہوں گے تو کیا الیکشن کا فائدہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جو ہے نا ریزلٹ بھی ماننے چاہیے. میں نہیں کہتا کہ پاکستان کے ریزلٹ سارے مان لو لیکن یہاں جو ہے نا کسی کے پاس ایسی پاور نہیں ہے کہ کوئی آپ کا الیکشن جو ہے نا اس کے نتائج چینج کر دے. یہاں تو فیئر ہوتے ہیں, آپ خود بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے سامنے ووٹ گنے جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں جتنی بھی باتیں یہاں ہوئی ہیں اچھی باتیں ہوئی ہیں اور یہ ہمارے دل کی باتیں ہیں. میں سب کی حمایت کرتا ہوں, تائید کرتا ہوں. دیکھیں یہاں پاکستان سوسائٹی نے ینگ لوگوں کو سامنے لانے کے لیے شاہین کونسل بنائی, ساری تنظیمات کو اکٹھا کیا, آپ گواہ ہیں, ساری تنظیمات کو اکٹھا کیا اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ہم نے کہا جی آپ ہمارے اس شاہین کونسل میں آ جائیں. تو ہم نے جو شاہین کونسل میں 20-25 لوگ پڑھے لکھے سلیکٹ کیے اور ہم سب نے ساری تنظیمات نے ان کی حمایت کا اعلان کیا کہ بابا آپ مختلف سیاسی جماعتوں کے ممبر بن جائیں, ہم سب آپ کی حمایت کریں گے, آپ کا آپس میں بھی کانٹیکٹ ہوگا, ایک دوسرے کی حمایت کرو گے اور بے شک آپ کسی بھی جماعت میں جائیں. لیکن ہمارے کیونکہ مسائل ایک ہیں جن کے لیے ہم نے فائٹ کرنا ہے. اور دیکھیں پاکستان میں سیاسی جماعتیں کیا چاہتی ہیں کہ پاکستانیوں کی بہتری ہو, پاکستان کی بہتری ہو. تو جماعت کوئی بھی ہو مقصد تو ایک ہی ہے نا, تو وہ اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, اس میں پالیسی میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے یہاں سیاسی جماعتوں میں ہم جب جاتے ہیں نا ایک نقطہ ہے جس پہ ہم سب اکٹھے ہیں کہ غیر ملکیوں کے لیے باقی تو ان کی اپنی ہے. کوئی کہتا ہے جی آئندہ ساتھ ہونا ہی نہیں چاہیے, یعنی کہ آپ کی ملکیت ہی نہیں ہونی چاہیے, سب کچھ اسٹیٹ کی ہونی چاہیے. کچھ ایسے بھی جاتے جو کہتے ہیں جی ہر کوئی اپنی قسمت کا خود جو ہے نا مالک ہے, ہمت کرے, جو کما سکتا ہے کما لے. مختلف نظریات ہیں. لیکن ہم جب جاتے ہیں سیاسی تو غیر ملکیوں اور مسلمانوں کے لیے بھی یہاں کے حالات اچھے ہیں. یہ ملک ان کا بھی ایسے ہی ہو جیسے یہ یہودیوں کے لیے ہے, عیسائیوں کے لیے, باقی اقلیتوں کے لیے. یعنی کیوں سختی ہے ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے اور ہمارے پاکستانیوں کے لیے. اگر آپ دیکھیں ہم آج ویزا بھی نہیں لے سکتے, لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی پاکستانی غیر ملکیوں میں سب سے آگے تھے. کیوں؟ ہماری پاکستان سوسائٹی بہت مضبوط تھی اور ہم نے سب سے پہلے GFR بنا لی, 4-5 تنظیمات غیر ملکی کو ساتھ ملا کر. اس کے ذریعے ہم نے یہاں کی سیاسی جماعتوں کو اپروچ کیا, حکومت کو اپروچ کیا, ہم نے کچھ مسائل حل کرائے. اس کے بعد ہم نے 135 تنظیمیں اکٹھی کر کے انسا بنائی اور اس کے ذریعے ہم نے پھر بہت چیزیں حاصل کی. ہم نے پہلا جو اولیننگ لون تھا 83 میں پاس ہوا, یہ پورٹ سلوڈا کے وقت میں پاس ہوا. تو اس میں ہم نے سارے حقوق لے لیے تھے, یعنی کہ جو یہاں قانونی طور پہ رہ رہا ہے اس کا حق ہے, قانونی حق ہے کہ اپنی فیملی بلا سکے. یعنی مختلف چیزیں تھی اس میں, ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں, لیکن بڑا بہترین بنا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, پول یورپ راسموسن کے وقت میں سختیاں شروع ہوئی اور وہ سختی پہ سختی, چینجز اتنی آئیں کہ ساری کی ساری نیگیٹو آہستہ آہستہ. تو بات صرف یہ کہ غیر ملکی منتشر ہو گئے, پاکستانی بھی اتنے اکٹھے نہ رہے, تو ایسا ہوا. اب ہم جب کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اگر صرف پاکستانیوں کو لے لیں, آپ کو پتہ ہے جب ہم نے یہاں ڈیڈ باڈی کا کرایہ معاف کرایا تھا تو کسی ملک میں ڈیڈ باڈی کا کرایہ معاف نہیں تھا. نہ PIA مفت میں ڈیڈ باڈی لے کے جاتی تھی, نہ کوئی اور ایئر لائن. تو یہ 43 ایئرس پہلے کیسے ہو گیا تھا؟ جب میں اس کے لیے کوشش کر رہا تھا نا PIA کے خلاف, کبھی جلوس, کبھی اشتہار, کبھی ان کے ساتھ مذاکرات, کبھی ان کا بائیکاٹ. یہ بائیکاٹ اصل میں ہوتا نہیں تھا لیکن شور ہی ہوتا تھا. ہم ان کو پریشرائز کرتے تھے, پھر ان کی لیڈرشپ آتی تھی, ان سے میٹنگز ہوتی تھیں. تو اس وقت ہمارے اپنے لوگ جن کے لیے میں کام کر رہا ہوں کیا کہتے تھے کہ ولایت خان انڈیا کا ایجنٹ ہے, حالانکہ میں ڈیڈ باڈی کا کرایہ معاف کرا رہا تھا. اس کے بعد جب 30 کلو وزن کے لیے میں فائٹ کر رہا تھا کہ ہمیں 30 کلو وزن لے جانے دو, یہ کہیں بھی نہیں تھا, صرف یہاں ہوا. ڈیڈ باڈی کا کرایہ بھی یہاں ہی صرف معاف ہوا پہلے. اب تو بہت ساروں نے دے دیے, 30 کلو سے بجائے 40 کلو بھی ہو گیا. لیکن اتنے سال پہلے یہ کرایہ جو ہے نا معاف کرانا آسان نہیں تھا, یعنی یہ 30 کلو کرانا آسان نہیں تھا, ڈیڈ باڈی کا کرایہ معاف کرانا آسان نہیں تھا. لیکن پاکستانیوں نے اس وقت کیا شور مچا رکھا تھا. وہ یہاں ہیں, آج بھی کچھ لوگ ہیں اور کچھ فوت ہو گئے جو کہتے تھے کہ یہ تو انڈیا کا ایجنٹ ہے, یہ تو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے, PIA کے خلاف بات کرتا ہے. اور میں یہ کہتا تھا کہ PIA میں ایسی خوبیاں ہونی چاہیے کہ یہ اپنے لوگوں کی خدمت کر سکے اور لوگ بھی اسی سے پیار کریں اور اسی کے ذریعے سفر کریں. تو آج میں آپ کو بتاؤں بہت ساری چیزیں میں جن کو گن سکتا ہوں.
पाकिस्तान सोसाइटी को बड़ी कामयाबियाँ हुई अल्लाह के फजल करम से। ये कुछ अगले साल तक ना आपको एक किताब की सूरत में मिलेगी इंशाअल्लाह, जो हमने काम किए, बड़े तारीखी काम है जिनसे हर पाकिस्तानी को फ़ायदा होता रहा है। ये सिर्फ किसी एक हल्के को नहीं, सब पाकिस्तानी को फ़ायदा होता था। तो यही मकसद होता है मिलजुल कर काम करने का। बात यह है कि हमने आज भी, पहली बात तो यहाँ के मसाइल गंभीर हो चुके हैं, यहाँ के मसाइल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और अगर आप पाकिस्तान के मसाइल ले लें, पाकिस्तानी को जो दरपेश हैं वो भी बहुत हैं। यानी अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ, हम क्या मांग रहे थे कि कोई एयरलाइन हो। हमारे मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है कि आज पाकिस्तानी, हमारे यंग लोग जो है ना, छोटे बच्चों वाले, वो पाकिस्तान नहीं जाते। वो कहते हैं जी इतना लंबा सफ़र छोटे बच्चे लेकर हम नहीं कर सकते। वो कहाँ जाते हैं? तुर्की में जाते हैं। शादी करनी होती कहते हैं यहीं कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ जाना जो है ना पूरी फैमिलीज़ का, और 20-20 घंटे का सफ़र ये बड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का नुकसान होता है। आप देखिए जब एक शादी आप करते हैं ना, तो कम से कम 4-5 करोड़ जो है ना आपकी फैमिलीज, आपके जो भी करते हैं, ये 4-5 करोड़ का खर्चा है। 2 फैमिलीज जाती हैं शादी के लिए, बाकी रिश्तेदार जाते हैं, वहाँ जाके खर्च करते हैं। अगर ये जाएंगे तो फ़ायदा किसको होगा? पाकिस्तान को। वहीं खाएंगे, वहीं खरीदेंगे, वहीं जो है ना सारा कुछ होगा। तो जब ये नहीं जाते, यहाँ करते हैं, तो पाकिस्तान को इतना नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारी डायरेक्ट एयरलाइन कोई नहीं है। छुट्टियों पे कितने पाकिस्तानी वहाँ कहते हैं जी टूरिज्म हो, तो बाबा हमारे अपने टूरिस्ट नहीं जाते। ये स्पेन जाते हैं, तुर्की जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, दुबई जाते हैं, पाकिस्तान नहीं जाते, क्योंकि डायरेक्ट एयरलाइन नहीं है। हमारा बिजनेसमैन कितना परेशान है कि यहाँ के बैंक उसको कितना तंग कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था, वहाँ जाकर मैंने कोशिश भी की। अभी आपको बताऊँ, वहाँ सियाल एयर के साथ बात चल रही थी। उस्मान डार हमारी मदद कर रहे थे, हुकूमत बदल गई, नई हुकूमत आई, हमने कोशिश की तो उन्होंने बड़े लारे भी लगा दिए, किया भी कुछ नहीं। खान साहब से जब रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया था। तो बात यह है कि कहते सारे हैं, मानते सारे हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। बैंक के लिए क्या है, बैंक की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन चुकी, सिर्फ हमारे बैंक की गारंटी बढ़ जाती। हमारा मसलन HBL है, मुख्तलिफ ममालिक में है, अगर वो स्कैंडिनेविया में आएगा तो उसकी गारंटी बढ़ जाएगी। तो स्टेट बैंक के लिए गारंटी देना तो कोई मसला नहीं है ना। हमने अप्रोच भी किया, लेकिन हमारी बात किसी ने सुनी नहीं है। अब हम कोशिश तो करेंगे, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं तो हमारी बात सुनी जाएगी। अगर हम बयान देंगे मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, पार्टियों की तरफ से सिर्फ बयान, तो वो अल्फाजी जंग है। हम एक दूसरे को बता सकते हैं जी वो भी कहता है, मैं भी कहता हूँ, मैंने भी कह दिया, उसने भी कह दिया। तो बाबा ये कह देने से नहीं होगा, ये मिलकर एक पार्ट आपको बनना पड़ेगा, फैंडिंग्स पार्ट, यानी जो उनके साथ मुज़ाकरात करे, जो रिजल्ट मांगे वो रिजल्ट आ जाएगा अगर हम इकट्ठे हो गए। तो अगर हम इसी तरह से डिवाइडेड रहेंगे, मतलब काफ वालों ने भी बयान दे दिया, नूर वालों ने भी दे दिया, पाकिस्तान सोसाइटी ने भी बयान ही दे दिया, बयान से तो कुछ नहीं होना। हम एक मुनज़्ज़म ग्रुप की हैसियत से यहाँ के पाकिस्तानियों की तरफ से जब एयरलाइन मांगेंगे तो हमें एयरलाइन मिलेगी। पाकिस्तानी एयरलाइन 2 ऐसी एयरलाइंस हैं जो आ सकती है यहाँ। PI अगर नहीं भी आती तो दूसरी 2 एयरलाइंस हैं, उनमें से कोई एक आ सकती है, लेकिन उसके लिए हमारा इत्तेहाद ज़रूरी है। उसके बाद बैंक आ सकता है, उसके लिए हमारा इत्तेहाद ज़रूरी है। ये कैसे हो सकता है कि हमारी सिम जो है ना वो बंद हो जाएगी, हम जाएंगे तो वहाँ से निकलते हुए 10,000 से ज़्यादा नहीं ला सकते। ये मसाइल किसने पैदा किए? उन लीडरों ने जो हमारे मसाइल को नहीं समझते। हालांकि हम सारी सियासी जमातों में मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं, छोटे मोटे जो लीडर हमारे पास आते हैं उनको सुनाते हैं, MPA को MNA को बताते हैं, तो वहाँ जाकर वो शायद बात भी कभी करते हो, लेकिन वो इतना फाइट नहीं करते। फाइट हमने खुद ही करना है और उसके लिए ज़रूरी है हमारा इत्तेहाद। इंशाअल्लाह मिलकर कोशिश करेंगे, अल्लाह के फजल करम से हमारे मसाइल हल होंगे। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। देखें जहाँ तक कम्यून के मसाइल हैं, ये कम्यून में, पार्टियों में, पाकिस्तान सोसाइटी की तरफ से हम अंगेज रहे हैं नेशनल लेवल पे। जो मसाइल थे कम्यून में रह क्या भी मुझे मौका मिला, जितना भी मौका मिला तो उसमें जो है ना कम्यून्स में मैं अंगेज था, लेकिन अप्रोच क्या थी, नेशनल लेवल पे हमारी पॉलिटिक्स, यानी गैर मुल्कियों के लिए दोस्ताना माहौल, यानी दोस्ताना कानून हों तो बने, अब भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम मिलकर कोशिश करें। तो आप कहते हैं कि मैं इलेक्शन में, पिछली दफा राजा साहब यहाँ बैठे हैं, सब ने कोशिश की कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लूँ,
कोई और नहीं ले रहा, कोई पाकिस्तानी कोपन में हिस्सा ही नहीं ले रहा था। तो मैंने कहा था कि देखिए मैं इंसाफ नहीं कर सकता, मैं पाकिस्तान में बहुत कम जाता था। अब मेरा दिल है कि इस पीरियड में पाकिस्तान जाऊँ। जब मैं पाकिस्तान 2 महीने जाके रहूँगा, कभी 3 महीने रहूँगा, कभी 2.5 महीने रहूँगा, तो ये इंसाफ नहीं होगा इस मैंडेट के साथ। बिल्कुल बंदे को समझना चाहिए कि बंदा टाइम दे सकता है, ये जो जिम्मेदारी लेता है उसे पूरी कर सकता है, तो फिर आगे बढ़ना चाहिए, वरना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जिम्मेदारी किसी और को मिलनी चाहिए। तो मैं उस वक्त भी इनको कहता था हमारे यंग लोग हैं, इनके पास जो है ना माशाल्लाह टैलेंट है, हम इनकी हमायत करते हैं। उस वक्त हमने क्या किया, लास्ट टाइम राजा साहब आपको तो याद है, हमने इकराम को अप्रोच किया था कि हिस्सा लो। हमने तो मुख्तलिफ लोग, मैं अब नाम लेकर बता सकता हूँ, हमने कम से कम 15 लोगों को अप्रोच किया था, तुम हिस्सा लो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सारे, क्योंकि उनको जो है ना लड़ाने वाले नहीं थे। इलेक्शन एक होता है इलेक्शन में हिस्सा लेना, दिलचस्पी एक होता है इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन लड़ाने वाले लड़ा लेते हैं। वो कैसे होता है कि वलैद खान हिस्सा ले रहा है तो हमने उसकी मुखालफत के लिए किसी को खड़ा करना, ये होता है इलेक्शन लड़ाना। उनकी दिलचस्पी नहीं है जो लड़ रहा है, उसको सिर्फ लड़ाया जा रहा है। तो बात यह है कि ऐसे माहौल से हम निकलें और कोशिश करें कि हम अपने इज्तिमाई मफादात की खातिर अपनी जिद, अपनी अना इसको छोड़कर अपने मफाद की खातिर एक दूसरे की हमायत करें। अभी बात हो रही थी कश्मीर की, तो मैं समझता हूँ ये कश्मीर का जो इशू है ये तो हमारा सबका है। ये हमारा सब, फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, हर मुसलमान का दिल दुखता है हालात देख कर, बड़ी तकलीफ होती है। और हम सब जो है चाहते हैं कि वहाँ हालात अच्छे हों। और सिर्फ एक ही सूरत है कि पाकिस्तान के, अभी ये जो है ना कश्मीर वालों की, कश्मीर सोसाइटी क्या है, कश्मीर वालों की एक तंजीम है जो कोशिश करती है। ये मसला सिर्फ इनका नहीं है, हम सब कश्मीरी हैं और ये सारे पाकिस्तानी हैं। कश्मीर और पाकिस्तान एक हैं, लेकिन जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, वहाँ रेफरेंडम नहीं हो जाता, उस वक्त तक बिल्कुल कश्मीर की जो है अपनी कानूनी सूरत हाल वो अलग है। तो हमें चाहिए कि हम इनको जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं करें। इन्होंने कहा कि 15 तारीख को इंशाल्लाह हम सब वादा करते हैं वादा, इंशाल्लाह 15 तारीख को वहाँ होगी इंशाल्लाह आपके साथ। हम तो करने की कोशिश करते हैं। जितने भी हमारे इज्तिमाई मसाइल हैं, जितनी भी हमारी ज़रूरतें, उसके लिए हमने मिलजुल कर काम करना है। आपके यहाँ आना काबिल तारीफ है, आपके दिल में मोहब्बत है, वतन से भी, अपने हम वतनों से भी। इंशाल्लाह ये मोहब्बत कायम रहेगी और बढ़ेगी और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। आप सब के लिए तालियां होनी चाहिए। आप इलेक्शन लड़ेंगे, हम खुद आपके लिए काम करेंगे। मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा।